Now, let's see here. Declination case. We will study the declination case. All right. Case first. When declination is east. Declination is east. So let's see here. Wait. जब declination east होगा, so we know that declination is the horizontal angle between true north and magnetic north, or true meridian or magnetic meridian. We know. So first we'll draw true north, true south, true east, true west. All right. True north, true south, true east, true west. Since the declination east की तरफ है, तो this is east, true east. This is magnetic north, magnetic south. All right. Got it? This is magnetic east, magnetic west. This was true north. That's why I have drawn this magnetic north towards its side. So this is what? Del. Because this is the del what? Declination. This del is what? Declination. Because we know that declination is the true horizontal angle between the true north and magnetic north. All right. Now, let's see here. Suppose I'm saying that, I'm saying that magnetic bearing is 189 degree. Say for an example. So if I'm saying magnetic bearing is 189 degree, what would be the quadrant? Second quadrant. Say this is what? This is magnetic meridian, because it's magnetic bearing, not true bearing. Now let's see here. For magnetic meridian, this is what? First quadrant for magnetic meridian. All right. This is second quadrant. This is third quadrant. This is fourth quadrant. This is for magnetic meridian. All right. For true meridian, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. All right. Getting my points? Let del is equal to 5 degree east. Let del is equal to 5 degree east. And all these things are in whole circle bearing. All these things are in whole circle bearing. All right. If it's 5 degree, so obviously this will be how much? 85 degree. All right. Now let's see here. This is this to this first quadrant and this to this second quadrant for magnetic meridian. All right. So line, whatever the line 189 degree, it can be in this portion or in this portion. All right. So obviously, if it's in this portion, it means that 90 plus this angle. Now let's say this is del, this is 85. Again, this 90 degree, this how much? 5. This how much? 85. All right. Getting my points? Or we can say that from here to here, vertically opposite angle. This is also del. All right. From vertically opposite angle, this is also del. Can we write or not? Clear? Now let's see here, since this is 85 degree, since this is 85 degree, it means that this is 90. This is 90. 90 plus 85, how much? 185. This is sorry, 175. This is in third quadrant now, not second quadrant. This is in third quadrant. 175. All right. So any line having 175 degree, it will lie in this portion. All right. Huh? Now
it means that this 189 degree will lying this or this because it is 189 degree. It's how much? 189 degree. तो 189 तो इसमें लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. 189 है तो यहां तक क्या हो गया हमारा? यहां तक क्या? यहां तक क्या हो गया हमारा? अरे यार, यहां तक क्या हो गया? हाउ मच? 180 डिग्री. नाउ दिस इज 5, दिस इज 85 because this is 90 degree. All right. Now it means that this is 185. Sorry, this is 180 and up to this 180 plus 85, 265 degree. 265 is lesser, greater than this value. All right. So what it mean? It means that this OA, this OA, this OA will lying this portions. All right. This is how much? 189 degree. This is the magnetic bearing. This is what? Magnetic bearing. We have to find the true bearing. True bearing will be measured in clockwise direction from true north. True bearing will be measured in clockwise direction from true north. This is true north. All right. So this will be how much? This will be how much? 189 degree plus this angle. All right. Can we say or not? What we are observing? We are observing if the bearing is in WCB, and declination is east, true bearing is equal to magnetic bearing plus declination. And here true bearing is greater than magnetic bearing. All right. So this we can do with the help of formula. This we can do with the help of figure. All right. Getting my points? Any doubt? Write down. From here to here. Now from here to here, I'm getting the second quadrant of magnetic meridian. So it will be lying this portion or this portion. Getting my points? Either it will be lying this portion or this portion. Got it? Clear है राज आपको भी? Now let's see here. Now let's see here. This is so obviously if this is how much? 5 degree. So from here to here, vertically opposite angle, this or this, vertically opposite angle. Can we write? Raj, unmute करके रखिए. Can we write yes or no? All of you, classroom. Clear है? So obviously, if this is vertically opposite angle and this is how much? How much? 90. So this will be how much? 90 minus 5. 90 minus 5. That's equal to 85. That's equal to 85. Now let's see here. 90 plus 85. ये समझने के लिए आपको लिखना नहीं कहीं. That's equal to 175. That's equal to how much? 175. It means that we know that from here to here, this is first quadrant. Sorry, from here to here, this is first quadrant, and from here to here, this is second quadrant. So from here to here, if this is 85, if this is 85, this also 90. समझिएगा ध्यान से.
ये भी 90 होगा, तो ये कितना हो गया हमारा 5 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 5 है, तो 90 5 कितना हो गया 95, कितना हो गया। इसका मतलब अगर लाइन इसमें लाई करता तो उसका बियरिंग होना चाहिए 95 से कम। अगर लाइन इसमें लाई करता तो इसका यहां से यहां तक का बियरिंग होना चाहिए कितना 95। बट बियरिंग कितना दिया हुआ है, बियरिंग दिया हुआ है हमारा 175, सॉरी 169। सो रिमेंबर आज आपका क्लास मिस हुआ है बेटा, 3 क्लास, उसमें बियरिंग मेजर करते हैं हम लोग हर समय नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होल सर्कल बियरिंग मेजर करते हैं। और यहां हमारा दिया हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग, तो हम लोग मेजर करेंगे उसको हर समय मैग्नेटिक मेरिडियन से। सो मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। इंडिया में मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करते हैं हम लोग सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक देखिएगा और अगर आप देखिएगा बाहर विदेशों में, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करते हैं, मैग्नेटिक साउथ से भी मेजर करते हैं। बट फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसीडर इट टू बी फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ ओनली। इवन कुछ फील्ड इंजीनियर्स इंडिया में मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ जो नजदीक है उससे क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशंस करने में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अडॉप्ट करने में इजियर होता है। बट जब भी आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आएगा आप लोग को मैग्नेटिक नॉर्थ से कंसीडर करना है। वी हैव टू कंसीडर इट फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज direction, in clockwise direction. No, now let's see here, if I am saying in clockwise direction तो obviously सी बात है अगर मैग्नेटिक नॉर्थ से यहां तक जाएंगे तो उसका ये 90 है और ये 5 है, तो ये 95 होना चाहिए। इसका मतलब 95 से ज्यादा है 169, तो इसका मतलब लाइन जो लाई करेगा हमारा वो इसके और इसके बीच लाई करेगा। किसके बीच, इसके बीच और इसके बीच लाई करेगा। सो ऑब्वियसली व्हाट वी, so obviously this is the line OA. This is the line OA. So what we can say that कि आपका ये जो आपका आ गया that's equal to how much 169 degree. That's equal to how much 169 degree from मैग्नेटिक नॉर्थ से हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाउ मच 169। वी हैव टू फाइंड द ट्रू नॉर्थ, वी हैव टू फाइंड हाउ मच ट्रू नॉर्थ। सो ऑब्वियसली if I am saying true bearing, so obviously true bearing has to be calculated। true bearing को कैलकुलेट करना है ट्रू नॉर्थ से। कहां से, ट्रू नॉर्थ से। आपका ट्रू नॉर्थ हर समय कहां रहेगा, यहां रहेगा। तो इसका मतलब बेटा कि अगर आप ट्रू नॉर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप ट्रू नॉर्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखिएगा क्या कि आपका ये जो लाइन है हमारा ये आना चाहिए क्या हमारा ट्रू बियरिंग, क्या आना चाहिए ट्रू बियरिंग। सो समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को, अरे यार समझिएगा मेरी बात को गौर से। सो ये दिस इज हाउ मच, कितना है राज बताइए ये कितना एंगल है 169 डिग्री। दिस इज हाउ मच। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन, वी हैव टू फाइंड this one। It means that from this value I will subtract this value, all right। So when you are subtracting this value, when you are subtracting this value, when you are subtracting this value from this value will get this value, all right, getting my points। So obviously what I am getting that हम क्या हम पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन, बिकॉज here that's equal to 169 degree minus 5 degree 164 degree। I am getting answer। So what I am observing कि if bearing is in reduced bearing, if bearing is in WCB, bearing is in WCB and declination is towards west, declination is towards west, declination is towards west, then
then whole then ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन। तो आप चाहिएगा तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, ट्रू बियरिंग जो होगा हमारा वो मैग्नेटिक बियरिंग से कम होगा। सो वेन एवर द क्वेश्चन आस्क इन जेई और ए एग्जाम और आरआरबी जेई एग्जाम, तो अगर आपको फिगर से बनाना है तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ फिगर ऑल्सो, और एल्स वी कैन अडॉप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला। This has to be done when only when the bearing is in the form of WCB। अगर bearing आपका reduced bearing में है तो बेटर होगा कि आप फिगर से कीजिए, या reduced bearing को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, WCB में, and then adopt this formula। ऑल राइट क्लासरूम स्टूडेंट्स, ऑल राइट, क्लियर है बेटा? क्लियर है आपको भी? राज क्लियर है तुम्हें? सर हिंदी में थोड़ा एक और बताइएगा सर। हाँ हाँ बता थोड़ा देते हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंग्लिश है, हिंदी में बता देंगे। देखो सबसे पहले क्या बेटा कि आपका 3-4 लेक्चर छूटा है जिसमें हम बताए हैं बियरिंग क्या होता है, हाँ WCB जी क्या सर हाँ। होता है, ठीक है ना, आरबी क्या होता है, इंक्लूड एंगल, उसका यूट्यूब पे डाले हुए हैं हम चारों वीडियो, ऐप पे भी डाले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, वैसे आपको बैकअप भी मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर हाँ। हाँ, सबसे पहले क्या होता है कि जो बियरिंग होता है ना, बियरिंग जो होता है वो आपका हर समय मेजर होता, वो होल सर्कल बियरिंग, वो हर समय मेजर होता है नॉर्थ से। कहां से होता है होल सर्कल बियरिंग मेजर? नॉर्थ। नॉर्थ से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक बियरिंग होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ से, ट्रू बियरिंग होगा तो ट्रू नॉर्थ से। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए बेटा यहां कि आपका यहां दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे 169 डिग्री, और डिक्लिनेशन हमारा 5 डिग्री दिया हुआ है, डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट। तो जो आपका मैग्नेटिक सॉरी डिक्लिनेशन होता है वो हर समय हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। तो इसका मतलब बेटा डिक्लिनेशन अगर वेस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ आपका वेस्ट की तरफ आएगा। किधर आएगा? वेस्ट की तरफ। तो इस तरफ आ गया। तो अगर ये ट्रू नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 5 डिग्री। क्या हो जाएगा एंगल हमारा इसके बीच का एंगल? 5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 5 डिग्री। अब आता है हमारा मैग्नेटिक बियरिंग 169 डिग्री। तो अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक ईस्ट है, ये मैग्नेटिक वेस्ट साउथ है और ये मैग्नेटिक वेस्ट है, तो ये बेटा 90 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया? ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, ये वाला चीज। अब 180 डिग्री 90 और 180 के बीच में ये लाई करेगा। जब ये 90 और 180 के बीच में लाई करेगा इसका मतलब लाइन हमारा इस मैग्नेटिक ईस्ट से या मैग्नेटिक साउथ के बीच में लाई करेगा। अब बीच में एक ये ट्रू ईस्ट भी आ रहा है, हो सकता है ट्रू ईस्ट के ऊपर रहे या ट्रू ईस्ट के नीचे रहे, ये पता करना है। तो बेटा ये 90 है तो ऑब्वियसली सी बात है ये 5 होगा, और ये 90 है तो ये क्या होगा? 90 माइनस 5। फिर ये भी 90 है तो ये भी हो जाए, ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं आपको, देखिए। चलो अब ये बताओ, ये कितना डिग्री है? 5 डिग्री है? बोलिए, बोलते रहिए बेटा, बोलते रहिए। 5 डिग्री है, बोलो। यस सर। 5 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री सर। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस 5, 85। 85। ये कितना डिग्री? 90। ये कितना हो गया? ये भी 85 हो गया। कितना? 90 -5 तो 85 होगा ना सर। भैया सॉरी वो ओहो, 85 -90। 5 डिग्री होगा ना? हाँ जी सर हाँ जी सर।
ये तुम्हारा 5 है, ये 90 है, तो ये 85 हो गया। फिर ये 90 है, तो 90 में से 85 माइनस करोगे तो 5 आएगा ना। हाँ 5 डिग्री, हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक ईस्ट कितना डिग्री हो गया? 90। 90 हाँ जी प्लस सर। 5 कितना हो गया? 95। 95। 169 तो 95 से बड़ा है। हाँ जी सर। इसका मतलब ट्रू ईस्ट के नीचे आएगा, उसके ऊपर तो नहीं हाँ। रहेगा। हाँ जी सर। तो ये लाइन क्या आ गया? ओ ए। अब ओ ए आया हमारा, तो हम क्या किए कि यहां से ले लिए 169 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना ले लिए? 169 डिग्री। 9 डिग्री। क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग है तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करेंगे। ठीक है। हमें निकालना है ट्रू बियरिंग। जब ट्रू बियरिंग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ट्रू नॉर्थ से लाइन का मेजर करेंगे। ट्रू नॉर्थ हमारा ये है, लाइन हमारा ये है। अब आप बताइए बेटा, आप बताइए कि आपका ये जो है हमारा 169 डिग्री है, ये हमें निकालना है। तो क्या मैं इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? हाँ जी सर। तो 169 में से ये माइनस किए तो कितना आया? 169, 165, 4 164 डिग्री आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? आंसर। आंसर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फिगर से नहीं बनाए एग्जाम में, तो जब भी डिक्लाइनेशन वेस्ट की तरफ होगा, डिक्लाइनेशन वेस्ट की तरफ होगा, अडॉप्ट दिस फॉर्मूला: ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन। बट द बियरिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बियरिंग, इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बियरिंग। ऑल राइट, क्लियर हुआ बेटा? अब राज तुम्हारा क्लियर हुआ? यस सर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। So let's see here. True bearing is equal to magnetic bearing plus minus declination. Positive sign when declination is east. My negative sign when declination is towards west. Remember, this is only applicable when bearings are in WCB. Bearings are in WCB. All right. Written. So write down question. Calculate the true bearing of a line CD. Calculate the true bearing of a line CD. Calculate the true bearing of a line CD if its magnetic bearing is 73 degree and declination is 3 degree east. कोशिश कीजिए खुद से करने का, फिर मैं करता हूं। राइट डाउन। किस में अभी दे रहा बोलो हूं? तो। आरबी में। सो राइट डाउन, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन सीडी। कर लिया तुमने? डन? डन? फर्स्ट डू इट। हाँ, ओके ओके। Now write down second question. Calculate the true bearing of a line CD. Calculate the true bearing of a line CD if its magnetic bearing is south 50 degree 45 minute west. South 50 degree 45 minute west. Declination is
3 degree, declination is 3 degree 45 minute east. Declination is 3 degree 45 minute east. आपका रात जो है 4 क्लास मिसेज है, तो उसमें मैं हाँ जी बताया सर। था, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। मिनट। और ये बोलते हैं सेकेंड्स। क्या बोलते हैं? सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करना भी मैंने सिखाया है लास्ट क्लासेज में। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? कितना मिनट होता है बच्चे, बताइए कितना होता है? 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। ऑल राइट, चलिए करके खुद बताइए, फिर मैं देखता हूं। सर्कल बियरिंग को रिड्यूस्ड बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ वी कन्वर्ट। ऑल राइट, सबसे पहले समझिए, डैनी तुम्हारा कितना आया है WCB इसका? WCB लाउड, लेट्स सी हियर। सबसे पहले समझोगे बेटा, रिड्यूस्ड बियरिंग जो होता है ना, रिड्यूस्ड बियरिंग, आपका क्लास मिस है, मैं दोबारा डिटेल ब्रीफिंग कर दे रहा हूं। रिड्यूस्ड बियरिंग जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है बियरिंग को। और बियरिंग क्या होता है? नॉर्थ या साउथ से, दोनों से होता है बियरिंग, नॉट होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस्ड बियरिंग। बियरिंग क्या? बियरिंग इज द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द मेरिडियन। एक ऐसा एंगल जो लाइन मेरिडियन के साथ बनाता है, और मेरिडियन हर समय नॉर्थ साउथ होता है। क्या होता है बेटा? मेरिडियन हर समय नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? नाउ लेट्स सी हियर। अब समझिए मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ का, तो अब आपका ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है, साउथ और वेस्ट। तो यहां साउथ और वेस्ट, ठीक है ना? साउथ और वेस्ट। अभी ट्रू ट्रू ही सब छोड़ दो, अभी ट्रू की बात छोड़ दो अभी, ठीक है ना? कोई भी मेरिडियन मान लीजिए, साउथ और वेस्ट, तो लाइन इसके बीच लाई करेगा। और ये हर समय नॉर्थ या साउथ के साथ होगा, ईस्ट वेस्ट के साथ नहीं होता। नॉर्थ या साउथ जो क्लोज है, जो क्लोज है, ऑलरेडी मैंने बताया, टोल्ड यू। सो दिस इज व्हाट? 50 डिग्री 45 मिनट। ये कितना हो गया? 50 डिग्री 45 मिनट। मुझे इसका निकालना है होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लॉक, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन का भी हो सकता है, वो नॉर्थ ट्रू मेरिडियन का भी हो सकता है, वो नॉर्थ आर्बिट्ररी मेरिडियन का भी हो सकता है, वो नॉर्थ ग्रिड मेरिडियन का भी हो सकता है। ऑल राइट, सो दैट measurement has to be done from north in clockwise direction। जब आप नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलिएगा, तो आपका ये आएगा हमारा। अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना है? ये कितना है बेटा? ये कितना एंगल है बेटा? ये कितना एंगल है राज? सर 270। 270 ये नहीं, 180। 180। ये 180, हाँ 90 180। और ये 90, नहीं 90, 180। 180। ठीक है, अब आप इस 180 में इसको ऐड कीजिएगा, तो क्या साइड मेरा काम ये है। निकल जाएगा? हाँ टोटल निकल जाएगा तो सर। जब भी रिड्यूस्ड बियरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, साउथ वेस्ट में होगा, तो होल सर्कल बियरिंग में 180 क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा। ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 50 डिग्री 45 मिनट, तो 45 250। मिनट 0 13 230 डिग्री 45 मिनट। हाउ मच? 230 डिग्री 45 मिनट। इट मींस दैट जो आपका मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, इट्स मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, इसका WCB में कितना हो गया? 230 डिग्री 45 मिनट्स। ऑल राइट, हाँ जी सर। declination is east, so answer will be 230 degree 45 minute plus 3 degree 45 minute। all right, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? क्लासरूम एंड ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो ध्यान से, ऐड करना है 230 डिग्री 45 मिनट
3 डिग्री 45 मिनट, 45 कितना हो गया, 90 मिनट, 90 मिनट और 233 डिग्री। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी हम लोग मिनट या सेकंड को 60 से ज्यादा के टर्म में नहीं लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 233 डिग्री 60 मिनट प्लस 30 मिनट, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ जी कैन सर। वी राइट लाइक दिस वे? बोलिए, यस कैन सर। वी राइट लाइक दिस वे? क्या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यस और नो राज? हाँ जी सर। खत्म हो गया। तो 60 मिनट किसके कितने डिग्री के बराबर होता है, हाउ मच डिग्री? 1 1 डिग्री। 1 डिग्री यहां चल जाएगा, तो 234 34 डिग्री प्लस 30 मिनट विल 37। बी द आंसर। ऑल राइट, गॉट इट? हाँ जी सर, इसका फार्मूला क्या होगा सर? फार्मूला एक बार नोट डाउन करो। इसको फार्मूला सर। हाँ फॉर्मूला से किया, और फिगर से करके दिखा दे। हाँ जी सर। ठीक है, फिगर से तो ऊपर तो लगता है बता ही दिए आप। फिगर से खुद बना लीजिएगा। नहीं सर, बोल रहे हैं फिगर से तो लगता है बता दिए आप। नहीं, फिगर से नहीं बताया अभी, वो तो मैं बताया था आपको, ये बताया था कैसे चेंज करना है। क्योंकि फॉर्मूला तभी यूज कर पाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, तो डब्ल्यूसीबी में होना चाहिए पूरा बियरिंग। ठीक है ना, तो मैंने डब्ल्यूसी में कन्वर्ट करना बताया था। चलिए अब समझिए ध्यान से, फिगर से। दिस इज ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट। डिक्लाइनेशन इज वेयर, 5 डिग्री ईस्ट। डिक्लाइनेशन क्या है हमारा, 5 डिग्री। दिस इज ईस्ट, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट एंड मैग्नेटिक वेस्ट। ऑल राइट, डन। डिक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री है ना, कितना है, सॉरी, थ्री 5 डिग्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट्स 3 डिग्री ओ 3। 45 मिनट्स। ऑल राइट, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से 3 डिग्री 45 मिनट्स माइनस कीजिएगा। क्लियर है? अब देखो, तुमको नहीं बताएं राज, ये 90 डिग्री है और यहाँ 0 0 है, 45 45 है, तो मिनट क्या करेगा, इससे एक हासिल लेगा। तो जब मिनट इससे एक हासिल, यू आई टोल्ड यू, इस मिनट जब जब मिनट इससे एक हासिल लेगा, तो मिनट को कितना डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री। हाँ जी सर। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। हाँ जी तो सर। 60, तो 60 - 45 कितना हो गया, 15। यहाँ 60 लिख लो। हाँ जी तो सर। 60 - 45 15 हो गया। अब जब हाँ जी ये सर। 1 डिग्री इसको दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा, 89। तो 89 - 3 कितना हो गया, 86 डिग्री 15 मिनट। कोई डाउट? मैं नो फिर सर। से बता रहा हूं, 90 डिग्री 00 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट। सो अगर आप 00 को 45 से अगर आप कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका ये कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 89। 89 - 3 क्या आ गया, 86। कोई डाउट इसमें? सब ऐसा माइनस करने में कोई डाउट राज? नो सर। तो बेटा ये कितना आ गया, 86 डिग्री 15 मिनट। कितना आया, 86 डिग्री 15 मिनट। मेरा जो है हमारा, वो कितना है, साउथ, कितना दिया हुआ है, साउथ 50 डिग्री 45 मिनट। साउथ 50 डिग्री 45 मिनट, दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक साउथ कहाँ है, यहां है। दिस इज मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज मैग्नेटिक वेस्ट। ऑल राइट, सो कितना है हमारा, साउथ 50 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। अब देखो, 50 डिग्री 45 मिनट वेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें भी लाई कर सकता है, इसमें भी लाई कर सकता है। सो लाइन कैन लाई above true west और below true west।
लाइन कैन लाई अबव ट्रू वेस्ट और बिलो ट्रू वेस्ट। हमें पता करना होगा कि कहां लाई करेगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा क्या? बोलिए राज आप। यस सर, वाइस वर्सा सॉरी। 86 डिग्री 45 मिनट। हमारे हाँ पास बियरिंग कितना दिया हुआ है? हाउ मच बियरिंग इट्स गिवन? साउथ जी, 50 डिग्री 45 डिग्री वेस्ट। 45 मिनट वेस्ट। अब आप बताइए राज एंड क्लासरूम स्टूडेंट्स की लाइन कहां लाई करेगा, क्योंकि हमें तो रिड्यूस बेयरिंग मेजर करते हैं हर समय नॉर्थ या साउथ से। तो हाँ जी लाइन सर। इसके ऊपर लाई करेगा, इसके नीचे लाई करेगा? नीचे सर। वेयर? टी दिस वे। डब्ल्यू के नीचे मतलब। हाँ जी सर। कितना लाइन सी डी दिया हुआ है? क्या सी और डी? गॉट इट? सो दिस विल बी हाउ मच? 50 डिग्री 45 मिनट। ऑल राइट, 50 डिग्री 45 फाइव मिनट्स। मिनट वी हैव टू फाइंड द ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग हो सकता है कि डब्ल्यूसीबी फॉर्मेट में हो या आरबी फॉर्मेट में हो। डब्ल्यूसीबी फॉर्मेट में होगा तो ये एंगल होगा। ऑल राइट, क्लियर है? हाँ? और अगर आपका आरबी फॉर्मेट में होगा तो हमें ट्रू साउथ से लेना है, तो ये होगा आरबी ट्रू बियरिंग। ऑल राइट, अब देखो बेटा ध्यान से, ये कितना डिग्री है और ये 3 डिग्री, तो ये भी 3 डिग्री 45 मिनट। बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैन वी राइट? तो आपका ये जो आया हमारा, इसमें से इसको ऐड कर देंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन ये पोर्शन, ये पोर्शन ये पोर्शन ऐड करेंगे तो निकल जाएगा हमारा ये पोर्शन। बोलिए, हाँ? कैन वी राइट? लिख सकते हैं राज? तो बेटा ये कितना आ गया हमारा? साउथ 54, सॉरी, साउथ 50 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो ये आ गया साउथ 54 डिग्री 54 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये आरबी के फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया? आरबी के फॉर्म में आया। गॉट इट? हाँ? अगर हमें डब्ल्यूसीबी के फॉर्मेट में निकालना है तो हम ये जाएंगे, कौन सा ये वाला पोर्शन जाएंगे, सॉरी ये जाएंगे व्हाइट वाला। अगर हमें आर होल सर्कल बियरिंग के फॉर्मेट में निकालना है तो यहां से ऐसे करके कहां जाएंगे? ऐसे जाएंगे। ये हाउ मच? 90 90। दिस इज हाउ मच? 90 90। So this 90 and this 90, we will add this one. Getting or not? ये वाला पोर्शन में ये 180 ऐड कर देंगे। जब ये 180 इसमें ऐड करेंगे तो मुझे ये निकल जाएगा। बोलो राज। हाँ सर, निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका ये जो आया 180 प्लस 54 डिग्री 30 मिनट, आंसर कितना था हमारा? फोर आंसर डिग्री कितना था 30 मिनट। बिना फॉर्मूला से? कितना था? 230। 233 डिग्री था, सॉरी 234 डिग्री 230। 30 मिनट था ना? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी सर। डब्ल्यू से आ गया 234 डिग्री 30 मिनट। तो फॉर्मूला बेवफा है, आज याद किए और कल भूल गए। इसलिए फिगर से कीजिएगा तो हर समय रहेगा, लेकिन फिगर से थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मूला अगर याद है तो तुरंत हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ? फार्मूला लिख दीजिए, सर फार्मूला लिख दीजिए, हम भी लिख लेते हैं थोड़ा। फॉर्मूला लिख दीजिए। नहीं बेटा, आरबी का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो यहाँ लिखा है ना हमने। यहां तो हमने लिखा ना फॉर्मूला कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लानेशन, और ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लानेशन। ये तो लिखा ना मैंने। हाँ जी सर। हाँ। तो ये आप तभी यूज कीजिएगा जब आपका डब्ल्यूसीबी में रहेगा। किस में रहेगा? डब्ल्यू डब्ल्यूसीबी में सी रहेगा। अगर आरबी में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट द सेम इन डब्ल्यूसीबी एंड देन यू कैन यूज द फॉर्मूला। क्लियर है ना?
ओके सर। अब आरबी को डब्ल्यूसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपका क्लास छूटा हुआ है, वो आइएगा तो आपको बताया जाएगा, या आप बैकअप में ऐप पे हमारा अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज? यू वांट टू राइट, लिखना चाहते हैं आप लोग? लिख लिए राज? हाँ जी सर, लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। द ट्रू एंड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी आर, रिटर्न लिख लिए तुम? लिख लिए, लिखना है? लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया? हम्म। So write down a question. The true and magnetic bearing of a line ABR, the true and magnetic bearing of a line ABR, the true and magnetic bearing of a line ABR, 120 degree 45 minute, 120 degree 45 minute, and 123 degree 15 minute, 123 degree 15 minute. Find the magnetic declination. Find the magnetic declination. मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालना है। क्लियर है बेटा? राज क्लियर, समझ में आया? हाँ जी सर। निकालिए। हुआ आप लोग का? राज किए क्या? हाँ जी सर, मैंने कर लिया सर, मेरा आंसर आया 140 डिग्री और देखो सबसे 60। पहले क्या है हाँ जी सर। कि देखो सी हियर, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ऑल राइट, तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन, और साथ साथ ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन। ऑल राइट, ये कब होता है? जब डिक्लाइनेशन किधर हो? ईस्ट की तरफ हो। और ये कब होता है? जब डिक्लाइनेशन किधर हो? वेस्ट की तरफ हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी हियर, हियर ट्रू बियरिंग इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक बियरिंग, हियर ट्रू बियरिंग इज लेस देन मैग्नेटिक बियरिंग। इन योर क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन में ट्रू बियरिंग क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग से ज्यादा है या कम है? ट्रू बियरिंग इज लेसर और ग्रेटर देन मैग्नेटिक बियरिंग? बोलिए। लेसर, इसका मतलब डिक्लाइनेशन किधर होगा? टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट? टुवर्ड्स ईस्ट। ट्रू बियरिंग इज लेसर, इट मींस दैट डिक्लाइनेशन टुवर्ड्स वेस्ट होगा ना, डिक्लाइनेशन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। सो डिक्लाइनेशन तो वेस्ट हो गया, और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 123 डिग्री 15 मिनट, 120 डिग्री 45 मिनट। ऑल राइट, लेट्स सी हियर, दिस इज 15, दिस इज 15, तो ये क्या करेगा? इससे एक हासिल लेगा, तो इट विल टेक 1 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा? 60 मिनट। 60 प्लस 15 75, 75 माइनस 45 30 मिनट। इसके पास एक कम बच गया, 122 माइनस 20 2 डिग्री। कितना आंसर आया था? 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री
30 मिनट वेस्ट आया था। राज, आपका कितना आंसर आया था? सर हम तो ऐड कर दिए थे सर। ऐड क्यों करोगे बेटा? नहीं सर। डिक्लिनेशन हर समय सब्ट्रैक्ट करके आता है ना। हाँ जी सर, हाँ। और ईस्ट और वेस्ट कैसे होगा? वो देखेंगे कि ट्रू बियरिंग का वैल्यू मैग्नेटिक बियरिंग से बड़ा है या छोटा है। हाँ जी सर। रिटर्न लिख लिए सबको ही? लिख लिए राज, आप भी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, समटाइम्स न्यूमेरिकल पूछता है एट नून, और जेई में पूछे हुए, जेई में भी पूछे हुए एट नून सन, सूरज, एट नून। तो वेन एवर द क्वेश्चन मीन्स एट नून 12 PM, तो सन जो होता है हमारा वो, सॉरी, 12 AM और 12 PM, दोपहर, ठीक है ना, मिड आफ्टरनून। तो सन हमारे जस्ट ऊपर रहता है, मेरे ऊपर, तो उसको बोलते हैं सन इज एट इट्स ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एट इट्स ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो इट मे बी अलोंग द नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। क्योंकि जब सन हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे होगा, इसका मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पे होगा, तो सन इधर भी हो सकता है या सन इधर भी हो सकता है। सन कैन बी एट अलोंग टुवार्ड्स नॉर्थ और कैन बी टुवार्ड्स साउथ। ऑल राइट, आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से। सो when the sun is towards north or towards south, when the sun is towards north or towards south, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जब ये नॉर्थ है हमारा, तो इसका जो होल सर्कल बियरिंग होगा, ट्रू बियरिंग, वो 0 डिग्री होगा। तो क्योंकि अगर मैं ट्रू नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो 0 भी हो सकता है, या ऐसे करेंगे तो 360 भी हो सकता है। सो वेन एवर द सन इज ओवर द नॉर्थ या टुवार्ड्स द नॉर्थ, तो उसका ट्रू बियरिंग जो होगा, इट कैन बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। सो व्हेन द सन इज, हाँ, when the sun is towards south, so its bearing will be how much? 180 degree. 180 degree. So write down note. Write down a note. First note. Write down a first note. At noon, 12 p.m. At noon, 12 p.m. Sun is over its geographical meridian. At noon, 12 p.m. Sun is over its geographical meridian. That is, it may be along the true north or true south. That is, it may be along the true north or true south. It may be along the true north or true south. Written. Next, second, when the sun is along true north or geographical north, when the sun is along the true north or geographical north, when the sun is along the true north or geographical north, then true bearing of sun is 0 degree or 360 degree.
then true bearing of sun is 0 degree or 360 degree. Done. Next, when the sun, second point, when the sun is along true south or geographical south, when the sun is along true south or geographical south, then true bearing of sun is 180 degree. Then true bearing of sun is 180 degree. तो अब इस पे हम कल न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है ना, तब जाके ये डिक्लानेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, टेम्पररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट। देन यू विल स्टार्ट द ट्रैवर्सिंग। ऑलराइट, क्लियर हुआ? रात समझ में आया क्लास, जितना पढ़े हो? क्योंकि कुछ चीज तुम्हारा क्लास मिस हुआ है। हाँ जी सर, हाँ। मैं अभी कॉल करता हूँ, ठीक है? चलिए। ओके सर।